میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ وہ بہت عجیب تھی، گھر سے اچانک کہیں غائب ہو جاتی اور آتے ہی نہانے چلی جاتی۔ جب وہ باہر سے آتی اس کے پاس ایک بیگ ہوتا تھا جس کو وہ مجھ سے چھپاتی تھی۔ ایک دن وہ بیگ کھول کر دیکھا تو جان نکل گئی۔ میرا نام اکمل ہے۔ میں بہت ہی عام سا انسان تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، نہ ہی زیادہ پیسے کما سکا، لیکن ایک بات کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس بہت ہی زیادہ خاص چیز تھی اور میں اس معاملے میں بہت زیادہ خوش قسمت تھا، اور وہ تھی میری بیوی جس کا نام روبینہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور شاید دنیا والوں کے لیے وہ کوئی اتنی بھی زیادہ خوبصورت نہ ہو، لیکن مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی۔ ہم لوگ کافی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پر ہماری دوستی محبت میں بدل گئی اور پھر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم شادی کریں گے۔ میرا کام زیادہ اچھا نہیں تھا، کبھی مجھے کام ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، لیکن ایک بات اچھی یہ تھی کہ مجھے میرے گھر کا کرایہ نہیں دینا پڑتا تھا، کیونکہ وہ میرے دوست کا گھر تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، لیکن بدلے میں میرا دوست مجھ سے اپنے بہت سارے کام فری میں کر لیتا تھا۔ دراصل میں ایک پلمبر تھا اور لوگوں کے گھر جا کر مرمت وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کام کے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے۔ میرا وہ دوست بہت زیادہ امیر تھا اور اس کا ایک ہوٹل بھی تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے اچانک بلا لیتا اور کہتا کہ میرے پورے ہوٹل کے پائپ ٹھیک کرنے ہیں، اور یہ سب کام کرنے میں پورا دن لگ جاتا تھا اور مجھے بدلے میں 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا ہوا ہے، یہی سوچ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ وہی بات کہ میں اس کے احسان کے نیچے دبا ہوا تھا اور وہ میرا فائدہ اٹھا رہا تھا، اور اس کا احسان بھی تو کافی بڑا تھا۔ یوں رہنے کے لیے پورا گھر کون دیتا ہے آج کل؟ میں اس کے احسان کو بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ برے وقت میں میرے کام آیا تھا۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ایک اچھی انسان تھی اور ضرورت سے زیادہ ہی معصوم تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی معصومیت پر حیرانگی ہوتی تھی، لیکن اسے ہمیشہ مستقبل کی فکر رہتی تھی۔ اس کے سارے جملے اسی بات سے شروع ہوتے تھے کہ ہم آگے کیا کریں گے؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے کسی اور کے گھر میں؟ اگر اس نے اچانک ایک دن یہ گھر لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی فکر بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میرا دوست کسی دن مجھے گھر سے اچانک نکال دیتا تو پھر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ہمارے لیے کوئی چھت خرید سکتا، اور ہوٹل میں بھی رہنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو کیا ہم سڑک پر رات گزارتے؟ یہ سوچ کر تو میں بھی پریشان ہو جاتا تھا، پر ابھی میں پریشان ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے بھی پریشانی ہوتی تھی، لیکن میں کہتا تھا کہ اچھی کی امید رکھو، اچھی اچھی باتیں سوچو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے گھر کے حالات اچھی نہیں تھے، یہی وجہ تھی کہ ہم نے ابھی تک بچہ بھی پلان نہیں کیا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں، پھر اولاد پیدا کریں گے۔ میری بیوی اکثر کافی پریشان رہتی تھی، اس لیے اس کو خوش کرنے کے لیے میں چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ کبھی میں اس کے لیے ایک پھول لے آتا، وہ واقعی اس پھول کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش بھی ہو جاتی تھی۔ ایسی نہیں تھی کہ یہ کہے کہ یہ تو صرف ایک پھول ہے، وہ کہتی تھی کہ یہ تو تمہاری محبت ہے۔ اسے میرے جذبات کا احساس تھا، میری فکر تھی، مجھ سے محبت تھی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ اچھی انسان تھی، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے پڑھائی نہیں کی تھی اور اسے کوئی کام بھی نہیں آتا تھا۔ ویسے اگر عورت کو کوئی کام نہ آئے تو کچھ عورتوں کو کھانا بنانا تو آتا ہی ہے، اور جو ہمارے حالات تھے، وہ اگر کسی عزت دار گھر میں کھانے پکانے کا کام کر لیتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن میری بیوی کوئی اتنا خاص کھانا بھی نہیں بناتی تھی۔ وہ اپنے بارے میں بہت کم سوچتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے اور میں تمہارا ہاتھ بٹانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، تم میرے ساتھ ہو یہی بات کافی ہے، اور یہ سچ تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں تھا اور وہ خود اس بات سے شرمندہ ہوتی تھی۔ جس دن میرا کام لگ جاتا تھا
उस दिन मैं सुबह जाता तो रात को ही वापस आता था। पूरा पूरा दिन मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता था। एक दफा कॉल करके बीवी से पूछ रहा था कि वो कैसी है। एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कि जो हम नहीं चाहते थे वो हो गया। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? तो उसने कहा कि तुम मुझे एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट ला दो, मैंने अपना टेस्ट करना है। मैंने कहा कि ठीक है मैं ले आता हूँ, और मैंने उसे वो चीज ला कर दे दी। अगले दिन सुबह सुबह वो बाथरूम में गई और जाने से पहले उसने मुझे कहा कि मैं टेस्ट करने जा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि अभी हमारे हालात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि इस तरह की बातें ना करो, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, अगर अभी एक बच्चा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ कर लेंगे, जो हम खाते हैं वो भी खा लेगा, हम उसको भूखा तो नहीं रखेंगे। लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ बहस करने के मूड में नहीं थी। वो अंदर चली गई और काफी देर हो गई, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। मैंने कहा कि दरवाजा खोल दो, हुआ क्या है बताओ तो सही। मुझे उसके रोने की आवाज आ रही थी। इसका मतलब कि जो वो नहीं चाहती थी वो हो गया था। परेशान तो मैं भी था, पर मैंने अपने जज्बात छुपाए और कहा कि दरवाजा खोलो, बाहर तो आ जाओ, क्या अंदर ही बैठी रहोगी? थोड़ी देर के बाद वो बाहर आ गई, अपने आंसू साफ करके आई थी। उसने मुझे टेस्ट दिखाया जिसमें 2 लाइंस थी। इसका मतलब यही था कि वो माँ बनने वाली थी। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने उसे गोद में उठाया और मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मैं उसको ये नहीं जताना चाहता था कि मैं भी थोड़ा परेशान हूँ। लेकिन मैं वाकई इतना परेशान नहीं था। मुझे बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने कहा कि मुझे नीचे रख दो, क्या होगा इस बच्चे का मुस्तकबिल हमारे साथ? हम एक दिन खाते हैं, 2 दिन नहीं खाते। बच्चा तो ऐसे नहीं समझता, उसने तो खाना खाना होता है, उसके तो 1000 खर्च होते हैं। हॉस्पिटल का खर्चा पड़ेगा, दवाइयाँ होंगी, कपड़े होंगे, दूध, पैम्पर, कपड़े, जूते, झूला, ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। ये कोई छोटा खर्चा नहीं है। और बात यहाँ पर रुकती नहीं है, उसके बाद खर्चे और भी होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। 3-4 साल तक बच्चे को पालो, उसके 1000 खर्चे हैं। बच्चा स्कूल जाने वाला होता है तो तब भी माँ बाप को छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसके स्कूल की फीस, किताबों के खर्चे और न जाने क्या क्या। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, ये हमारी जिंदगी का एक अच्छा पल है। अभी तुम परेशान हो, जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो उसे इतना ज्यादा प्यार करूंगी, फिर तुम्हें ये सोच के बुरा लगेगा कि जब तुम्हें ये पता चला था कि वो आने वाला है, तुमने इतना बुरा रद्द अमल दिया था। हमारा पहला बच्चा है, भूल जाओ इस टेंशन को, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं मर थोड़ी गया हूँ जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मेरी बीवी मेरे गले लगकर रोने लगी, लेकिन फिर उसने कहा कि वो अब से कुछ बुरा नहीं सोचेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जानती थी कि सब कुछ ठीक इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि मैं 4 साल में भी तो कुछ नहीं कर पाया था, फिर इन 2 महीने में क्या कर लेता। मैंने उसे तसल्ली दी थी कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम पैसे जमा कर लेंगे। इंसान पहले तो ऐसे ही सोचता है कि अभी बहुत वक्त है, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन वो वक्त हवा की तरह गुजर जाता है और इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। हमारी रूटीन के खर्चे पूरे नहीं होते थे, अलग से पैसे जमा करना या पहले से कोई चीज लेके रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। जो जरूरत सर पर पड़ी होती थी पहले उसी के बारे में सोचा जाता था। मुस्तकबिल के बारे में तो वो इंसान सोचता है जब उसका हाल बेहतर होता है। उसे पता होता है कि मेरा हाल मुनासिब है, अब मुझे मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ सोच लेना चाहिए। लेकिन हमारा तो हाल ही बेहाल है, तो हम क्या कर सकते थे। मेरा एक ही दोस्त था, वो होटल वाला नहीं बल्कि एक और दोस्त था मेरा, जिसका नाम जमशेद था। वो बहुत अच्छा इंसान था, वो मेरे हालात से वाकिफ था। उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मेरे से कुछ हो सका तो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। लेकिन वो भी मेरी तरह ही था, और वो तो इसलिए शादी भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी उसने तसल्ली दी और कहा कि ये टाइम बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए। तुम अपनी बीवी को बहुत ज्यादा खुश रखना, फिर तुम्हारा बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। मैंने कहा कि हाँ जरूर, अपनी बीवी को खुश करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने एक और नौकरी करने के बारे में सोचा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मेरा काम वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मुझे करना था। और शाम को ही मैं अपनी बीवी के लिए ढेर सारी चीजें लेकर गया, जिसमें कुछ अचार भी थे, क्योंकि मैंने सुना था कि जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है
तो उसका अचार खाने का बहुत दिल करता है। लेकिन घर पहुंच गया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी, जबकि रात होने वाली थी। उसका मोबाइल बंद था। 1 घंटे तक परेशान रहा और बाहर जाने ही वाला था उसे तलाश करने के लिए कि वो आ गई। मैंने कहा कि कहाँ गई थी, तो उसने कहा कि ऐसे ही दिल घबरा रहा था तो यहाँ से चली गई थी। मैंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मुझे देखकर वो हैरान हो गई। उसने कहा इतनी सारी चीजें खरीदने के तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा पैसे हैं मेरे पास, परेशान ही हो तुम। लेकिन न जाने क्यों अचानक मेरा सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो मेरी बीवी बहुत परेशान थी और मुझे होश में लाने के लिए मेरे मुंह पर पानी फेंक रही थी। मुझे होश में आता देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और मेरे गले लगकर रोने लगी कि क्या हो गया था तुम्हें? तुमने जरूर कोई मेहनत का काम किया है, तभी तो तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने कहा कि हो जाता है कभी कभी, अचानक से इंसान काम करता है तो ऐसा ही होता है, लेकिन 2-4 दिन बाद तो आदत हो जाती है। उसने कहा कि तुम ये सब कुछ करोगे, इतनी मेहनत करोगे? तो मैंने कहा कि अपनी बीवी और बच्चे के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता है। मेरी बीवी खामोश हो गई। मैं वैसे भी उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कहा कि चलो चलो देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो बिल्कुल खामोश थी, मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उसके बाद घर में कुछ अजीबो गरीब किस्म के वाकयात बढ़ने लगे और इसमें सबसे ज्यादा ये कि मेरी बीवी घर पर रहती ही नहीं थी। हम जिस जगह पर रहते थे वहां से कुछ दूर एक पार्क था जहां पर ज्यादातर औरतें और बच्चे ही आते हैं। मैं जब भी उसे पूछता था वो कहती थी वहां थी, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा था। शुरू शुरू में दिल घबराता है ये बात भी मुझे पता थी, लेकिन मैं जिस टाइम भी घर आता था वो घर पर नहीं होती थी और जब घर आती थी तो उसके हाथ में एक बैग होता था। मैं समझ नहीं पाता था कि उस बैग के अंदर क्या है। मेरी बीवी आहिस्ता आहिस्ता काफी मुतमईन रहने लगी थी। अब वो ये नहीं कहती थी कि बच्चा आने वाला है, पैसे कहाँ से आएंगे, जबकि शुरू में तो 1 हफ्ते तक लगातार उसने रोज मुझसे यही बात की थी। लेकिन उसका अचानक गायब हो जाना और फिर एक बैग के साथ घर वापस आना मेरी समझ से बाहर था। जब भी बाहर से आते ही उस बैग को कहीं छुपा देती और उसके बाद नहाने चली जाती। एक दिन आई तो मैंने कहा कि आओ चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। उसने कहा मुझे नहाना है। मैंने कहा कि 5 मिनट नहीं नहाओगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो ऐसे भाग गई कि जैसे नहीं नहाएगी तो कोई कयामत आ जाएगी। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी और इसका ताल्लुक इस बैग के साथ ही था। और उसमें क्या था, जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसमें एक मैट है जो मैं घास पर बिछा कर बैठ जाती हूँ, लेकिन अगर मैट था तो वो उसको रोल करके हाथ में पकड़ सकती थी। उसको बैग में क्यों डाला हुआ था? और जहां तक मुझे पता था हमारे घर में ऐसा कोई मैट नहीं था, क्योंकि हम तो बाहर जाते ही बहुत कम थे। मैंने सोच लिया कि मुझे ये जानना है कि इस बैग में क्या है। बीवी से पूछा तो उसने कहा कि इसमें मैट है, यानी कि उसने तो झूठ बोल दिया था। अब मुझे खुद ही जानना था। और फिर एक दिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मैं अपने काम से घर जल्दी आ गया तो देखा कि बीवी शायद बाथरूम में थी और नहा रही थी, और वो नहाते हुए काफी टाइम लगाती थी, लेकिन वो बैग एक कमरे में ही पड़ा हुआ था। मैं हैरान रह गया और मैंने कहा कि आज तो मौका अच्छा है। जब मैंने उस बैग को खोला तो मेरी हैरानगी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसको देखने की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं सारी कहानी समझ गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर गंदे फटे हुए कपड़े, एक उजड़े हुए बालों की काली रंगत वाली विग, गंदे फटे हुए जूते थे। ये सब कुछ मेरी बीवी के साइज का था, मेरी बीवी के कपड़े के साइज का। उसे ये फटे हुए कपड़े और जूते कहीं से उठाने की जरूरत नहीं थी। वो क्या कर रही थी मुझे पता चल गया था, क्योंकि उसके अंदर एक बोर्ड भी था जिस पर लिखा था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, माँ बनने वाली हूँ, बोल भी नहीं सकती हूँ, मेरी मदद करें। यानी कि मेरी बीवी वो कपड़े पहनकर एक फकीर का हुलिया बनाकर भीख मांगने जाती थी, क्योंकि उसी बैग के अंदर से जो मुझे कोट मिला उसकी जेब में कुछ पैसे भी थे।
तभी तो मेरी बीवी ने ये कहना छोड़ दिया था कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि इस तरह अगर वो रोज भीख मांगने जाती तो इतने पैसे जमा कर ही लेती कि हमारे बच्चे के लिए पैसे पूरे हो जाते। लेकिन ये उसको नहीं करना चाहिए था। ये क्या कर रही थी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। जब वो नहाकर बाहर आए तो मैंने उसे देखा और उसने भी देख लिया कि मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंने भरकर उसे गले लगा लिया। मैंने कहा कि क्यों किया तुमने ये सब? उसने कहा कि और मैं क्या कर सकती थी। फिर मैंने कहा तुम नहीं करोगी, ये बिल्कुल नहीं करोगी। मेरी बीवी भी रोने लगी और उसने कहा कि ठीक है, अब नहीं करूंगी, वैसे भी काफी सारे पैसे जमा हो गए हैं। मैंने उसे फिर से गले से लगा लिया और मुझे पता चला कि गरीब इंसान की कोई जिंदगी नहीं होती है। मेरी बीवी ने मुझसे वादा किया कि वो आइंदा कुछ नहीं करेगी और मुझे बताए बगैर वो कोई भी हरकत नहीं करेगी, घर पर आराम करेगी। वैसे भी 5 महीने गुजर चुके थे, अब उसको आराम की सख्त जरूरत थी। लेकिन उसके बाद हमारे साथ एक अच्छी बात हो गई, मुझे एक कंपनी ने नौकरी पर रख लिया। ये भी एक बहुत बड़ा होटल था। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे होटल में जब भी कोई काम निकले तो वो ठीक करना, और हम तुम्हें महीने के पैसे देंगे और रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर भी दे देंगे। मैं बहुत खुश हो गया और अपनी बीवी को वहां ले गया। यानी अब मुझे अपने दोस्त के रहमो करम पर भी रहने की जरूरत नहीं थी और यहाँ पर मुझे महीने के पैसे मिल रहे थे, जिससे हम महीने का सामान एक साथ ले लेते थे। इसके अलावा मैं अपना काम भी साथ करता था। होटल वालों को कोई मसला नहीं था। उनका कहना था कि जब हमें आपकी जरूरत हो आपने वक्त पर पहुंचना है, इसके अलावा आप अपना काम कर सकते हैं। रोज रोज तो होटल में कोई खराबी नहीं होती थी, कभी कभी होती थी, इसलिए काम बहुत अच्छा था। मैं बहुत खुश था। उसके बाद हम दोनों की जिंदगी में मेरी एक प्यारी सी बेटी आ गई, जिसके आने के बाद हमारे हालात और भी अच्छी हो गए। वो बहुत ज्यादा प्यारी थी। हमने उसका नाम लैला रखा। हम लोग खुश हैं और अपनी जिंदगी की इस कहानी और इन बुरे हालात से हमने ये सीखा है कि बुरे हालात में सिर्फ आपके अपने ही होते हैं जो आपका साथ देते हैं, पर अगर आप अच्छे दिनों की उम्मीद ना छोड़े तो अच्छे दिन आ जाते हैं और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरी बीवी ने जो भी किया था वो मेरा साथ देने के लिए किया था। शायद वो किसी न किसी तरह गलत भी था, लेकिन उसने मुझसे वादा किया कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी और मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा कभी इतने बुरे हालात में आएंगे, क्योंकि अब हमने मेहनत करनी है और सब कुछ ठीक है हमारी जिंदगी में।